حاصل کی ہیں اور نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون 74 نشستوں کے ساتھ دوسری، جبکہ پی پی پاکستان پیپلز پارٹی 54 نشستوں کے ساتھ تیسری پوزیشن پر ہے۔ پرویز الہی جو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سابقہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور ان دنوں جیل میں ہیں کی اہلیہ اور NA64 سے کیسرا الہی، جنہیں بتایا جاتا ہے کہ ہرایا گیا، کی درخواست پر مذکورہ حلقے کا حتمی نتیجہ روک دیا گیا ہے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون نے اب تک نیشنل اسمبلی کی 74 نشستیں حاصل کی ہیں، پیپلز پارٹی 54 نشستیں ہی اپنے نام کر چکی ہے۔ MQM پاکستان میں 17، JUIF نے 3، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ کاف نے 2 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اب تک کے نتائج کے مطابق کوئی بھی جماعت سرکار بنانے کے لیے سادہ اکثریت دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے جوڑ توڑ یا ہیرا منڈی کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ پاکستان کے انتخابی نتائج میں تاخیر نہیں بلکہ داندلی کے درمیان پاکستانی تحریک انصاف نے ووٹ کے تحفظ کو لے کر آج پاکستان میں احتجاج کا اعلان بھی کیا، کیونکہ 101 نشستوں کے ساتھ آزاد امیدواروں کی جو برتری ہے اس میں PTI کہتی ہے کہ 184 نشستوں پر اس کے امیدوار کامیاب ہو رہے تھے، لیکن پاکستانی انتظامیہ نے عمران خان کی PTI کے 100 کے قریب کارکنان جو ہیں ان کو یا امیدواروں کو زور زبردستی اور داندلی سے ہرایا۔ پاکستان کی PTI بتا رہی ہے کہ عوام نے پرامن اور آئینی طریقے سے اپنا فیصلہ تو دیا، لیکن پاکستان کی اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ اس فیصلے پر وہ مہر نہیں لگا رہی ہے جو UG لگانا ہے۔ اور ایک بار پھر پاکستان میں آج حالات کشیدہ ہوئے۔ کراچی سے لے کے پاکستان کے دوسرے صوبوں میں عام انتخابات کے آزادانہ اور منصفانہ نتائج کا مطالبہ کرنے والے مشترکہ مظاہرے، جس میں سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ جماعت اسلامی پاکستان، PTI پاکستان اور دوسری کچھ جماعتیں، انہوں نے آج نعرے بازی کی اور پہلی بار آج عمران خان کی تصاویر جو ہیں پاکستان کے ٹی وی پر بھی کچھ سیکنڈ کے لیے دیکھی گئی۔ اسلام آباد میں آج ایک بار پھر دفعہ 144 پاکستان میں نافذ کیا گیا اور پاکستانی پولیس کا بتانا ہے کہ لوگوں کو کسی بھی غیر قانونی اجتماع پر قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی دوران شام گئے مریم نواز کے خلاف لڑنے والے جو آزاد امیدوار یا یوں کہیں PTI کے حمایت کردہ امیدوار، اس کو بھی بتایا جاتا ہے کہ غائب کیا جا چکا ہے اور پاکستان میں امیدواروں سے کاغذات چھیننے اور غائب کرنے کے پیچھے پاکستانی فوج کو ہی بتایا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال پاکستان کے جانے مانے صحافی عمران ریاض کی پاکستان میں دی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں قریباً 10,000 سے زائد لوگ ابھی بھی پاکستان کی مختلف جیلوں میں نظر بند ہیں، قید ہیں، جن میں اچھی خاصی تعداد خواتین کی بھی ہے۔ ناظرین، جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں میں آج ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ پچھلے 4 سے 5 سالوں میں کی گئی اصلاحات کے نتیجے میں جموں کشمیر کی GDP 2018-19 میں 1.6 لاکھ کروڑ روپے سے بڑھ کر 2021-22 میں 2.64 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ چکی ہے۔ جموں میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ پچھلے 4-5 سالوں میں کی گئی اصلاحات کے نتیجے میں ترقی ہوئی ہے اور جموں کشمیر کی اچھی حکمرانی ترقی اور امن کی راہ پہ گامزن ہے۔ SC کو ریزرویشن کے بارے میں ایک اور سوال پر جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے بتایا کہ کچھ لوگ اس معاملے پر سیاست کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے بے زمینوں کو زمینیں فراہم کرنے کے معاملہ کیا تھا، اس پر سیاستدان جو وہ نہیں چاہتے انہیں اپنا کام جاری رکھنے دیں، ہم اپنا کام کریں گے۔ منوج سنہا نے بتایا کہ جموں کشمیر بینک جو 1200 کروڑ روپے کے خسارے کا ادارہ تھا، اب 1300 کروڑ روپے کے منافع بخش ادارے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اس سال جموں کشمیر کی انتظامیہ کو امید ہے کہ جموں کشمیر بینک کا منافع 1800 کروڑ روپے تک پہنچ جائے گا۔ منوج سنہا نے بتایا کہ موجودہ انتظامیہ کو ماضی کے 28,000 کروڑ روپے کے باری قرضوں کی آج ادائیگی وراثت میں بھی ملی ہے اور جموں کشمیر کے لیے پارلیمنٹ میں حالیہ دنوں پیش کیے گئے ووٹ اینڈ اکاؤنٹ بجٹ پر حالیہ ووٹنگ کے بارے میں منوج سنہا نے بتایا کہ اقتصادی حالات پہلے کی نسبت بہت بہتر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جموں کشمیر انتظامیہ کی کوششیں سرمایہ کے اخراجات میں اضافہ اور محصولات کے اخراجات کو کم کرنے کی راہیں ہیں اور جموں کشمیر کے محصولات کے اخراجات
80,000 करोड़ रुपए में है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा मुलाजमीन की तनख्वाहों में जाता है, जबकि सरमाए के अखराजात में 11,000 करोड़ रुपए से 38,000 करोड़ रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत पर भी उन्होंने बात की, ताहम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादातर अतुल जम्मू कश्मीर के हालिया बजट के हवाले से ही थी। मनोज सिन्हा ने क्या बताया, सुनिएगा मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोदी सरकार द्वारा 30 करोड़ विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मुद्रा योजना से जोड़ा गया है। ये दो तथ्य ऐसे हैं जो वर्ष 2024 के शुरुआती 2 महीने की सबसे बड़ी खबर में इसे मानता हूं। वित्त मंत्री जी ने एक तीसरी घोषणा भी की जिस पर आपका ध्यान गया होगा, और मुझे लगता है कि ये भविष्य की सबसे बड़ी खबर बनने वाली है। उन्होंने पार्लियामेंट के माध्यम से देश को बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भारत सरकार ने स्थापित किया है, जो रिसर्च, इनोवेशन तथा डीप टेक टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करेगा। आज मुझे वाकई कहते हुए ये प्रसन्नता है कि अनुभूति हो रही है कि नारी शक्ति ने अपने टैलेंट तथा अपने सामर्थ्य से साइंस टेक्नोलॉजी में जो बाप दादा खा के गए थे उसको भी भरने का जिम्मा वो हम ही लोगों का है। तो 28,000 करोड़ रुपए का भुगतान जो 2005 से ड्यू चला रहा था उसको करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन वो किया गया है। इस बार जो मुख्य रूप से फोकस है कि सीएसएस का 100% यूटिलाइजेशन हम करें, इस पर काफी जोर दिया गया है। और गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष का जो एक्सपेंडिचर है वो भी क्वांटम जंप ले रहा है। ओवरऑल कैपेक्स का जो एक्सपेंडिचर है पिछले साल 31 जनवरी को जो था और आज, इसमें भी करीब 32% की ग्रोथ हुई है और आगे और बेहतर होगी। Because of increased revenue receipts and assistance from the central government, the capital expenditure is expected to reach 15% of the GDP, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फिगर है। उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन और HADP हमारा बहुत ही, मैं कहूं कि एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो बार बार मैंने कहा, स्कूल एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रूरल हाउसिंग हो, सोशल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के हालात वक़्त और बजट पर खास मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बजट के बाद। लेकिन अब आपको खवातीन की बहबूद के लिए, बावकार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में सारस मेले के दूसरे एडिशन के हवाले से बताते चलें कि जम्मू के बाग बाहू में आज जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने सारस मेले के दूसरे एडिशन का इफ्ताह किया। ये 11 रोज़ा प्रोग्राम है और सारस का ये मेला देही खवातीन की कारोबारियों को तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करता है। यहाँ जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू के साथ देही तरक्की और पंचायती राज के और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के ज़ेर एहतमाम इस मेला है। इसमें फ़न, दस्तकारी, सकाफत और खानों के लिए जो मुकामी लोगों की एक आवाज़ है उसकी बात की गई। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने जब आज इसका इफ्ताह किया तो उनके हमरा सेक्रेटरी देही तरक्की महकमे पंचायती राज डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी और मिशन डायरेक्टर JNK रूरल लाइवलीहुड मिशन इंदु कमल चिब, एडिशनल मिशन डायरेक्टर JKRLM जम्मू मर्दो सलाथिया, एडिशनल मिशन डायरेक्टर JNKRLM कश्मीर रियाज अहमद बेग और दूसरे अफसरान भी थे। यहाँ मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर की देही खवातीन के लिए अपनी मसनूआत की नुमाइश और मार्केटिंग के लिए एक प्लेटफार्म के तौर पर ये काफ़ी अहमियत का हामिल है और उन्हें देही खवातीन की खुद इन्हिसारी को यकीनी बनाने के लिए वसीतर नुमाइश और दूसरी मदद फराहम करने की अहमियत पर जोर भी दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम अजला की नुमाइंदगी करने वालों के साथ अतुल डल्लू ने स्टॉल्स का ज़ाती तौर पर मुआयना भी किया और उनके हाल-ए-आफियत और कारोबारी जज्बे को भी पूछा। बाद में चीफ सेक्रेटरी और शाहिद इकबाल ने कुछ खाने के स्टॉलों का दौरा भी किया जिसमें जम्मू कश्मीर के मुस्तनद खानों के साथ साथ मुख्तलिफ रियासतों के रिवायती पकवान भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर से 220 से ज़ायद देही खवातीन पर मुश्तमिल सारस का मेला
खवातीन दस्तकारों को अपनी मिसाली दस्तकारी, फनकारी और रिवायती महारतों की नुमाइश के लिए बताया गया कि एक प्लेटफार्म मुहैया करता है। और इस तकरीब में 60 से ज़ायद मुनफरद स्टॉल्स भी हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बाहर के 40 स्टॉल्स हैं जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों से मसनूआत की इम्तराज की नुमाइश भी करते हैं। इस सारस मेले का बुनियादी मकसद देवी ख़वातीन को अपने सामान की नुमाइश के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया करना और उनके लिए अपनी मसनूआत को बराह रास्त सार्फिन तक पहुँचाने के लिए एक मार्केट बनाना है और सार्फिन की तरजीहात और इंतखाबात को समझना भी है। बाद में मेले का मकसद देवी ख़वातीन कारीगरों की मार्केटिंग की सहूलियात को बढ़ाना और मसनूआत को भी बताया गया। सारस का मेला और ये न सिर्फ नुमाइश और सेल्स के लिए है बल्कि ज़ायरीन को मशगूल और तफरीह फराहम करने के लिए मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम और सरगर्मियाँ भी यहाँ हो रही हैं। और ये मेला रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा, जिसमें ज़ायरीन को मुख्तलिफ किस्म के फ़न और दस्तकारी की नुमाइश करने वाले तकरीबन 60 स्टॉल्स को देखने का मौका मिलेगा। और इन स्टॉल्स को मुख्तलिफ सेल्फ हेल्प ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के लिए उनकी मार्केटिंग की महारतों को बढ़ाने के लिए रखा गया है। ये सरस मेला आयोजित किया जा रहा है भारत सरकार की जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है और यूटी गवर्नमेंट का रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कायम किए जाते हैं वो अपनी उनको सहायता दी जाती है, थोड़े से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, कुछ उनको बैंक से क्रेडिट वो लेते हैं और अपने प्रोडक्ट्स बनाकर वो बेचते हैं। तो ये इंश्योर करने के लिए कि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं ये जगह जगह पर बिकें और इनकी डिमांड बढ़े, उसके लिए ये सरस मेलों का आयोजन होता है। तो इस बार ये जम्मू में हो रहा है और इसमें लगभग 15 स्टेट्स के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की दीदियाँ हैं वो इसमें भाग ले रही हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हमारे जो जम्मू कश्मीर के भी जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी भी दीदियाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वो भी इसमें भाग ले रही हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जम्मू के यहाँ आएँ और ये मेला 10 दिन तक चलेगा। यहाँ देखें कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स ये दीदियाँ अपने अपने ग्रुप्स में मुख्तलिफ स्टेट्स में कैसे बनाती हैं। और यहाँ भी 20 के 20 ज़िलों की दीदियाँ यहाँ आई हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले करेंगी। हम चाहते हैं कि इनका अच्छा खासा इनकी पब्लिसिटी भी हो और अवेयरनेस हो लोगों को कि, और हम इनको सपोर्ट करें कि ये आत्मनिर्भर बन सकें, अपनी जीविका खुद कमा सकें। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू जम्मू में सास मेले के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। लेकिन आपको बताएं, एक छोटा सा तजारती वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज यूनानी का आलमी दिन था। क्या कुछ रहा यूनानी के आलमी दिन पर वो बताएंगे ब्रेक के बाद।